السلام علیکم ایوری بڈی. وائی بوائز فیل ان کالج, اس کے ہم آج کوسچن آنسرز دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ کوسچن ہے اکارڈنگ ٹو دا آتھر ہربرٹ ای ہاکس کے مطابق دیر آر سم بوائز, یہاں کچھ لڑکے ہیں ہو فیل جو ناکام ہو جاتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں بیکاز کیونکہ دے ڈو ناٹ ٹرائی, کیونکہ وہ کوشش نہیں کرتے. ہو آر دے, وہ کون ہیں, کین وی ہیلپ دیم, کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ہربرٹ کے مطابق دا بوائز, وہ لڑکے ہو فیل جو فیل ہو جاتے ہیں بیکاز دے ڈو ناٹ ٹرائی, جو کہ کوشش نہیں کرتے اس لیے فیل ہو جاتے ہیں. آر دوز, وہ ہیں, ہو آر دے, آر دوز وہ ہیں who have too receptive mind, جن کا بہت زیادہ قبول کرنے والا دماغ ہے, that کہ they do not know, وہ جانتے ہی نہیں ہیں, how to put, کس طرح سے ڈالا جائے, effort, محنت کو, into any work, کسی بھی کام کے اندر, independently, خود مختار ہو کر. یعنی وہ اس چیز کو کیونکہ ان کا بہت زیادہ قبول کرنے والا ریسیپٹیو مائنڈ ہے, اس وجہ سے کیا مشکل پیش آ رہی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے, وہ نہیں جانتے کس طرح سے محنت کو کسی بھی چیز میں خود مختار ہو کر بغیر کسی کی ہیلپ کے کس طرح سے ڈالا جاتا ہے. یعنی کہ محنت کس طرح سے انڈیپینڈنٹلی خود کی جاتی ہے, ان کو ہیلپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے, تو وہ بغیر ہیلپ کے ان کو کام کرنا نہیں آتا. دے آر کالڈ, وہ کہلاتے ہیں برائٹ بوائز, بڑے ذہین بچے. نو ون کین ہیلپ دیم, ان کی نو ون کین ہیلپ دیم, ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا. بٹ لیکن دیز بوائز دیم سیلوز, وہ خود ہی اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں. ہاؤ ڈز, کس طرح, مسٹیکن ایمبیشن, غلط جو خواہش ہے, آن دا پارٹ آف بوائز, لڑکوں کی طرف یا لڑکے کے حصے میں, اینڈ دیئر پیرنٹس, اور ان کے والدین کے حصے میں جو ہے, لیڈ لے کر جاتی ہے ٹو دا فیلئر, ناکامی کی طرف, آف دا بوائز, لڑکے کی یا لڑکوں کی ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہے. کس طرح سے غلط خواہشات جو ہیں وہ ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہیں, جو کہ لڑکے کی طرف سے اور پیرنٹس کی طرف سے ہوتی ہیں. مسٹیکن ایمبیشن, جو غلط خواہش ہے, فار دا بوائز, لڑکے کے لیے, آن دا پارٹ آف دیئر پیرنٹس, ان کے والدین کی طرف سے, رنس کاؤنٹر, وہ خلاف جاتی ہے, ٹو آل, تمام, آف بوائز انٹرسٹ, لڑکے کی جتنی بھی دلچسپیاں ہیں, اینڈ ابیلٹیز, اور قابلیتیں ہیں, ان کے خلاف جاتی ہے. کیا وہ مسٹیکن ایمبیشن جو پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہوتی ہے وہ خلاف جاتی ہے لڑکے کی چاہتوں کے اور اس کی ابیلٹیز, صلاحیتوں کے خلاف جاتی ہے. بیکاز آف دس, اس وجہ سے, یہ جو بھی بتایا گیا سینٹینس, بیکاز آف دس, اس وجہ سے, دا بوائز اسٹاپ ڈوئنگ, وہ چھوڑ دیتے ہیں کرنا, دیئر ورک, اپنے کام کو, یعنی اسٹڈی کو چھوڑ دیتے ہیں کرنا, ود ڈسٹنکشن, کسی بھی تفریق کے ساتھ. یعنی تفریق کا کیا مطلب ہے کہ بہت اچھے انداز میں کسی چیز کو کرنا, ڈسٹنکشن, تفریق کے ساتھ کرنا, وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیڈنگ, تو وہی جو کام کو ٹھیک سے نہ کرنا ہے وہ کیا کرتا ہے, لیڈنگ, ان کو لے کر جاتا ہے, دیم, ان طلباء کو, ٹو فیلئر, ناکامی کی طرف. اچھا, یہ بوائز کے آگے میں نے کوما لگایا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ بوائز پلورل ہے, پلورل بوائز, تمام لڑکوں کے جتنے بھی انٹرسٹ ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے ایس جو ہے وہ, اس کے بعد جو ہے وہ کوما آ رہا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کی یا کے, اس کوما کا یہ مطلب ہے, یعنی کہ ان, یا بوائے یا بوائز کے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ کیا, انٹرسٹ, دلچسپیاں, اینڈ ابیلٹیز, اور صلاحیتیں, کس کی, کس کے, بوائز کے. اب یہ ایس کے بعد اس لیے کوما آیا ہے کیونکہ پلورل ہے یہ, ٹھیک ہے, پلورل میں بات کی گئی ہے نا, دیکھیں. اچھا, نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کوسچن نمبر 3 ہے, دیر آر سم بوائز, کچھ ایسے لڑکے ہیں یہاں, who have done, جو ہمیشہ انہوں نے کیا کیا ہے, who have done, جو کرتے ہیں, well, اچھا, at school, اسکول میں وہ بہترین کام کرتے ہیں, یعنی انہوں نے اسکول میں بہترین شاندار کامیابی جو وہ حاصل کی ہے, بٹ لیکن فیل, ناکام ہو جاتے ہیں, ٹو میک دیئر مارک, اپنا بہتر کرنے میں, اپنا شو کرنے میں, بہترین اپنے آپ کو شو کرنے میں, ٹو میک دیئر مارک, اپنا بیسٹ کرنے میں, ایٹ کالج میں. ہو آر دے, وہ کون ہیں, ڈو یو ہیو سچ بوائز, کیا ایسے لڑکے ہیں آپ کے پاس, ان کالج کے اندر, ان یور کنٹری, آپ کی کنٹری کے اندر, کیا ایسے لڑکے ہیں جو اسکول میں یعنی کہ بہتر کام کرتے ہیں اور کالجز میں جا کے وہ اپنا بیسٹ جو ہے وہ نہیں کر پاتے. دیر آر برائٹ بوائز, یہاں پہ جو ہے ذہین لڑکے ہیں, who have done well at school, جنہوں نے اسکول میں بہترین کیا ہے, بہترین کام کیا ہے, بٹ لیکن fail to get through college, لیکن کالج سے جو ہے وہ بہترین کام کرنے میں وہ کیا ہیں, ناکام ہو گئے ہیں,
बिकॉज क्योंकि दे हैव नेवर लर्नड, क्योंकि उन्होंने नहीं सीखा व्हाट द रियल एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इज, उनको नहीं पता कि रियल जो इतलाक है, असली इतलाक है मेहनत का, वो किस तरह से किया जाता है, उनको इस चीज के बारे में उन्होंने नहीं सीखा। कॉलेज के अंदर जो एकेडमिक स्टडीज है और जो स्कूल की एकेडमिक स्टडीज है, ये जुमला उसकी तरफ इशारा कर रहा है। कॉलेज की स्टडीज के अंदर क्या होता है कि इंसान जो स्टूडेंट है उसको इंडिपेंडेंटली सोचने की तरफ मजबूर किया जाता है, लेकिन जो स्कूल में बहुत ज्यादा आदत का शिकार हो जाए कि वो इंडिपेंडेंटली ठीक तरीके से नहीं सोच सकते या सोच ही नहीं सकते, तो कॉलेज में जाके उन लोगों को मसला होता है, क्योंकि उनको कॉलेज में डिमांड होती है स्टूडेंट्स से, जो स्टडीज का पैटर्न होता है वो पैटर्न स्टडी का जो है वो डिमांड करता है कि स्टूडेंट क्रिएटिव थिंकिंग के साथ खुद जो है वो चीजों को सोचे। जैसे इस चैप्टर जो हम अभी प्रोज पढ़ रहे हैं एंड में क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो बुक के साथ रिलेटेड ही नहीं है, फिर भी पूछे गए हैं। क्यों? ताकि स्टूडेंट की अपनी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो। तो इन स्टूडेंट्स से जो फेल हो जाते हैं लेकिन स्कूल में अच्छा काम करते हैं, स्टिल कॉलेज में फेल हो जाते हैं, यही वजह है कि कॉलेज में इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग बच्चों की खुद डेवलप करने की जो है वो उसकी तरफ कोशिश की गई होती है। कोर्स जो आपकी स्टडी का जो मटेरियल है वो भी उसकी तरफ लेकर जा रहा होता है कि बच्चे खुद इंडिपेंडेंटली जो है वो काम करें, खुद सीखें, खुद कुछ करें, लेकिन स्कूल के अंदर ये चीज नहीं होती। यही प्रॉब्लम है कि वो नहीं सीखा उन्होंने स्कूल में कि किस तरह से जो खुद एक एफर्ट है उसको डाला जाता है, किस तरह मेहनत की जाती है, किस तरह इंडिपेंडेंटली खुद काम किया जाता है, वो उनको नहीं पता, इसलिए वो फेल हो जाते हैं कॉलेज में। दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट, वो हमेशा मुनहसर रहे हैं ऑन देयर एबिलिटी, अपनी सलाहियत के ऊपर, टू गेट थिंग्स क्विकली, के वो जल्दी से चीजों को जो है वो हासिल कर लेते हैं। सच बॉयज, ऐसे लड़के आर प्रेजेंट, मौजूद हैं इन एवरी कंट्री। डू यू हैव सच बॉयज इन कॉलेज इन योर कंट्री? तो इसका मैंने जनरल आंसर दे दिया, स्पेसिफिक देने की जरूरत नहीं है। इट इज स्टिल माई पॉइंट ऑफ व्यू। सच बॉयज आर प्रेजेंट इन एवरी कंट्री, हर कंट्री के अंदर ये बॉयज मौजूद होते हैं, इसलिए मैंने इसको जनरल वे में लिखा है। एवरी कंट्री का जो है वो जनरल वे में आम तौर पर मैंने इसको मेंशन इसलिए कर दिया क्योंकि ये प्रोज जो है ये हर्बर्ट ने लिखी है, वो अमेरिकन है। स्टिल ये कंडीशन हमारे कंट्री में भी जो है वो मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली ये सब जगह पे मौजूद है। तो हाउ डज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज, किस तरह से फाइनेंशियल प्रेशर जो माली दबाव है लीड वो लेकर जाता है टू द फेलियर, नाकामी की तरफ ऑफ स्टूडेंट्स, तुलबा की, डिस्क्राइब्ड इन द लेसन, जिसे बयान किया गया है लेसन सबक के अंदर। डू यू हैव सिमिलर केसेस, क्या इस तरह के मिलते जुलते वाकयात मौजूद हैं इन योर कंट्री, आपका जो मुल्क है, आपकी जो कंट्री है वहां पे क्या इस तरह के हालात मौजूद हैं? कौन से कि बच्चे नाकाम हो जाएं फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से। द फाइनेंशियल प्रेशर जो माली दबाव है, कंपेल्स, मजबूर करता है स्टूडेंट्स, तुलबा को, टू अर्न, के वो कमाएं, मनी, पैसे को कमाएं, बाय डूइंग, करने से, डजन, दर्जनों ऑफ जॉब्स, नौकरियों को करके, काम को करके। यानी फाइनेंशियल प्रेशर मजबूर करता है तुलबा को कि वो पैसे कमाएं कई दर्जनों नौकरियां करके। मेकिंग देम, तो फिर क्या होता है कॉमा, फिर उसका रिजल्ट क्या है कॉमा। मेकिंग देम, तो ये उनको कर देता है क्या, हैव, या उनके पास होता है उसकी वजह से क्या, पुअर, बुरी, गैर मेयारी, पुअर एजुकेशन, तालीम जो है, एंड लिविंग कंडीशंस, और लिविंग, रिहाइश के या जिंदगी के जो हालात हैं वो क्या कर देता है, मेकिंग देम हैव, उनको बना देता है कि उनके पास हो, क्या हो, मामूली तालीम हो और मामूली जिंदगी के हालात हो। फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से जो वो जॉब्स करते हैं वो उनको यहाँ इन हालात की तरफ लेकर जाता है कि पुअर एजुकेशन एंड लिविंग कंडीशंस की तरफ लेकर जाता है। फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, इट लीड्स देम टू फेलियर। इट, ये पुअर एजुकेशन और लिविंग कंडीशंस की तरफ इशारा है कि ये क्या करता है, उनको नाकामी की तरफ लेकर जाता है। सच केसेस, ऐसे वाकयात, एग्जिस्ट, मौजूद हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन योर कंट्री। डू यू हैव, एग्जिस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया में ऐसे हालात मौजूद हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो हर जगह मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, डज द क्वेश्चन, जो सवाल है, ऑफ हेल्थ, सेहत का, लीड लेकर जाता है टू फेलियर, नाकामी की तरफ, एट कॉलेज के अंदर। हाउ फार, कितना, कैन द कॉलेज अथॉरिटीज, जो कॉलेज की इंतजामिया है, विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स, अपने जो तबीब हैं, जो ऑफिसर्स हैं, तबीब हैं, हेल्प, उनकी यानी कि उनकी मदद के साथ, हेल्प स्टूडेंट्स, मदद करती है स्टूडेंट्स की, इन सच केसेस, ऐसे वाकयात में, किस हद तक कॉलेज की इंतजामिया अपने
तबीब अफसरान के हमरा मदद करती है तुलबा की ऐसे वाकयात में। कैसे? हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर। आंसर देख लेते हैं। टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब यहाँ है टू व्हाट एक्सटेंट क्वेश्चन के अंदर ज्यादा मेन यही टॉपिक है कि टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक हेल्थ जो है वो फेलियर की तरफ लेकर जाती है। अब हम इसकी हद को ड्राइंग करके नहीं बता सकते, तो सिंपली एक छोटा सा वर्ड ऐड कर दें, टू अ लार्ज एक्सटेंट। बहुत ज्यादा अगर तादाद है तो लार्ज को ऐड कर दें, बहुत कम है तो लेस को ऐड कर दें। टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज्यादा हद तक। पुअर फिजिकल, जो बुरी जिस्मानी एंड मेंटल और जहनी हेल्थ, सेहत है, इज वन ऑफ द रीजंस, वजूहात में से एक है, फॉर फेलियर, नाकामी की, एट कॉलेज, कॉलेज में। बहुत ज्यादा हद तक जो बुरी जहनी और जिस्मानी सेहत है वो कई वजूहात में से एक है नाकामी की कॉलेज में। द कॉलेज अथॉरिटीज, जो कॉलेज की इंतजामिया है, हेल्प स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स की मदद करती है बाय इनहेंसिंग, बढ़ाकर, कोऑपरेशन, ताउन, बिटवीन, दरमियान किसके, टीचिंग स्टाफ के, एंड मेडिकल ऑफिसर्स, और जो मेडिकल के तबीब अफसरान हैं, तिब के अफसरान हैं, उनके दरमियान में क्या करके, कोऑपरेशन पैदा करके। इनहेंसिंग कोऑपरेशन। अथॉरिटीज क्या करती है, टीचिंग स्टाफ और मेडिकल ऑफिसर्स के दरमियान कोऑपरेशन बढ़ाकर स्टूडेंट्स की मदद करती है। कैसे? सो दैट, ताकि, सो दैट, कॉमा, सो दैट, ताकि द फेलियर, जो नाकामी है, कैन बी अवॉइडेड, उससे बचा जा सके। व्हाट प्लेस, क्या जगह, वुड, चाहेंगे या होनी चाहिए, वुड यू, आप चाहेंगे, अकॉर्ड, दी जाए या आप देंगे, व्हाट प्लेस वुड यू, आप देंगे, अकॉर्ड, देंगे, टू स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी हैं, इन कॉलेजेस, कॉलेजेस के अंदर जो खिलाड़ी हैं उनको आप क्या जगह देंगे, यानी कॉलेज में। इन माय, अच्छा पहली बात, आप जब आपसे इस तरह से क्वेश्चन किया गया हो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहा हो, तो प्लीज आपने आई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नजरिए के मुताबिक, आपने, यानी ये स्टूडेंट से क्वेश्चन किया गया है कि आप क्या जगह उनको देना चाहोगे अपने कॉलेज में। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नजरिए के मुताबिक, जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू का, तो आई का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। उसकी जगह आप क्या कहोगे, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नजरिए के मुताबिक, कॉमा, द स्पोर्ट्समैन, जो खिलाड़ी हैं, शुड हैव, उनके पास होना चाहिए क्या, देयर ओन, उनका अपना क्लब, एक क्लब हो उनका अपना। यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं उनका अपना एक क्लब होना चाहिए, कॉल्ड स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स क्लब होना चाहिए, ठीक है। दैट कैन मैनेज, जो क्या करे, डील करे, मैनेज करे, ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जितनी भी खेलों की, खेलों ये प्लूरल है, ठीक है, स्पोर्ट्स, खेलों की सरगर्मियां हैं, ठीक है, वो क्या करे, वो क्लब जो है वो क्या करे, मैनेज करे उन सरगर्मियों को। इन सच अ वे, इस अंदाज से मैनेज करे, इन खेलों की सरगर्मियों को इस अंदाज से मैनेज करे, दैट के स्टडीज, जो तालीम है जो कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है, स्टडीज डू नॉट गेट एनी हार्म, कोई भी स्टडीज को कॉलेज में, इन कॉलेजेस में जो पढ़ाया जा रहा है, स्टडीज जो की जा रही है उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। In my point of view, the sportsmen should have their own club called sports club that can manage all sports activities in such a way that studies do not get any harm in colleges. Sports की, अगर यहाँ पे S और T के बीच में कोमा होता तो स्पोर्ट सिंगल कोई भी एक खेल बन जाता और उस खेल की एक्टिविटी, फिर IES भी ना लगता, ठीक है। तो मैंने सारी खेलों की जो भी कॉलेजेस में होते हैं ना, उन सब की तरफ इशारा करके कहा गया है, खेलों की सरगर्मियां, ठीक है। तो ये भी मेंशन हो गया। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर, यहाँ है सम, कुछ, चंद क्या है, स्टूडेंट्स हैं, हु ज्वाइन, जो शमूलियत इख्तियार करते हैं कॉलेज में, फॉर द फन, मजे के लिए, ऑफ इट, यानी कि कॉलेज की स्टडी के लिए नहीं बल्कि वहाँ की जो लाइफ है उसके मजे के लिए उसको ज्वाइन करते हैं। शुड दे बी अलाउड, क्या उनको इजाजत दी जाए टू स्टे, वहाँ रहने की, यानी कॉलेज में। एवरी पर्सन, हर इंसान, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, यानी वो जिन्स उसकी कुछ भी हो, वो मर्द हो या औरत, एवरी पर्सन हैव अ बर्थ राइट, उसका पैदाइशी हक है, टू गेट, के वो हासिल करे एन एजुकेशन, तालीम को, इवन इफ दैट पर्सन, फिर चाहे कि वो इंसान इज ज्वाइनिंग, शामिल हो रहा है कॉलेज में,
यानी एडमिशन ले रहा है फॉर द फन ऑफ इट, उसके मजे के लिए, उसकी इस कॉलेज की लाइफ के जो है मजा उठाने के लिए उसको ही क्यों ना ज्वाइन कर रहा हो, फिर भी उसका ये पैदाइशी हक है कि वो एजुकेशन को, तालीम को हासिल करे। दे मस्ट बी अलाउड, चाहिए, दे मस्ट बी अलाउड, उनको इजाजत दी जानी चाहिए कि वो क्या करें, टू स्टे, वहां रहें इन कॉलेज में। आगे ये बिकॉज को आगे मैंने सो लिखा है, ठीक है, सो दैट, ताकि, यानी बिकॉज, सो दैट, ताकि दे कैन चेंज, वो बदल सकें, दे कैन चेंज, वो बदल सकें, देयर थिंकिंग, अपनी सोच को, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, एक मुस्बित राह की तरफ, ठीक है। अच्छा, एक नोट कर लें इस पॉइंट को कि आपसे जब भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को पूछा जाए और चैप्टर के अंदर उसका क्वेश्चन का रिलेटेड जवाब मौजूद ना हो, इस चीज को, अपने पॉइंट को जहन में फिक्स कर लें कि आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जब भी किसी भी जवाब में मेंशन करना है तो यू मस्ट हैव अ पॉजिटिव डायरेक्शन। आपका जो भी जवाब होगा उसके अंदर आपने नेगेटिविटी जाहिर नहीं करनी, इससे मार्क्स कटते हैं। वो आपसे पॉइंट ऑफ व्यू किसी के चीज के बारे में भी जो पूछ रहे हैं ना, वो कोई भी प्रॉब्लम है और उसका वो सोल्यूशन आपके जहन की थिंकिंग, क्रिएटिविटी को जानना चाह रहा है एग्जामिनर। वो चाहता है कि आप बताओ कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा है। एंड नेवर एवर टेल और से एनीथिंग बैड और एनीथिंग नेगेटिव, पॉजिटिव वे में हमेशा जवाब देना है, ठीक है। यही जो है वो हाई लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या जो यूनिवर्सिटी के रिलेटेड स्टडी है, वहां पे भी यही रूल अप्लाई होता है, एवरीवेयर यही रूल अप्लाई होता है। आप नेगेटिव थिंकिंग को नहीं दिखाते और ना ही इसको प्रमोट करते हो, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियोस कैसी लगी, आपको लेसन्स कैसे लगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दूसरों की मदद करें एंड प्लीज़ इन लेसन्स को दूसरों से जितना शेयर करें अच्छा है, क्योंकि ये हमारे कंट्री की जो स्टडीज़ है उसमें हेल्पिंग है कि उसका मेयार अच्छा हो, स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका फेलियर जो है वो लेवल कम हो, और जो प्राइवेट स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है वो एम मेरा यही है कि उनकी हेल्प हो सके। सो डू शेयर इट एज मच एज यू कैन, ताकि सबको इसके बारे में जो है वो पता चल सके। केयर किया करें दूसरों की, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज।